Okay, welcome back to chemistry class. 11th class student, we will continue with the topic basic principles of organic chemistry. So far what we had seen is the classification of organic compound. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Classification of organic compound, and that classification was of two types. One is on the basis of structure, and another is on the basis of functional group. Okay, so this is what, so on the basis of structure 1 and 2 is functional group. We had seen details of this. Then we have taken the next point, that is homologous series. And it is quite easy to get a homologous series for an organic compound. Now after this we will switch over to a very important part of this basic principle, is IUPAC nomenclature. Or even before that, let us see the types of carbon atom. टाइप्स ऑफ कार्बन एटम. अब ये भी एक थोड़ा सा नया फंडा है आप लोगों के लिए. टाइप्स ऑफ कार्बन एटम. सो इन अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, व्हेन वी से सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, देन व्हाट वी सी, देयर विल बी अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड between carbon atom. So it has single covalent bond and that saturated carbon. Now here all these three are saturated carbon. So saturated carbon, we also call it as sp3 hybridized carbon. ये फंडा समझाएंगे हम आपको बाद में. sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon. तो saturated carbon और sp3 hybridized carbon is of three types depending on, ये काय पे डिपेंड करता है, depending on the number of other carbon atoms attached to it, depending on the number of other carbon atoms bonded to it. If one carbon atom is bonded to a saturated carbon, then we call it as primary. If two carbon, then secondary. If three carbon, then tertiary. And if there are four carbon atoms, we call it as a quaternary carbon atom. So what we are talking about is the types of carbon atom. Types of carbon atoms in a saturated hydrocarbon molecule. Types of carbon atom in saturated hydrocarbon molecule. And that saturated carbon atom, as I told you, it is sp3 hybridized carbon. So the first type of it is primary carbon atom. It is denoted by 1 degree carbon. And what is primary carbon atom? A carbon atom which is directly bonded to only one carbon. Atom. जैसे ये आपने ईथेन मॉलिक्यूल कंसीडर किया अल्केन का. It is a saturated molecule, ethane. Carbon single bond. So this is saturated carbon, and this carbon is directly bonded to only one carbon. है ना,
रेस्ट ऑफ द वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड है बेटा, ये है हाइड्रोजन से, करेक्ट है। तो ये तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, बट दिस पर्टिकुलर वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय अ कार्बन। दैट मीन्स दिस कार्बन जिस पे मैंने स्टार मार्क दिया, ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है, ओनली वन कार्बन एटम। तो ये स्टार जिस पे लगाया, ये कार्बन हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। और हम डिनोट कैसे कर रहे हैं, 1 डिग्री से। बहुत इजी है ना। अब जैसे कोई भी मॉलिक्यूल आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का लेंगे, अब इसमें से मुझे आप बता सकते हो कि कौन सा प्राइमरी कार्बन होगा। बहुत इजी है ना। जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 6 कार्बन एटम टुगेदर in this hexane molecule. Carbon number 1 can be a primary carbon and carbon number 6 can be a primary carbon, because it is directly bonded to only one carbon atom. We call it as primary carbon atom denoted by 1 degree. तो जिस पे स्टार मार्क आ गया वो क्या बना आपका प्राइमरी कार्बन एटम, because it is directly bonded to only one carbon atom, करेक्ट है। तो प्राइमरी कार्बन एटम, ये फर्स्ट टाइप आपको पता चल गया। अब सेकेंडरी कार्बन एटम क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बन एटम, इसे कैसे डिनोट करने वाले हैं, 2 डिग्री से। अब बहुत इजी हो गया, सेकेंडरी कार्बन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल बनाया आपने, इसमें सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, a carbon atom which is directly bonded to 2 other carbon atom is what we call as secondary carbon atom. It is bonded to 2 other carbon atom, 2 other carbon atoms, correct, 2 other carbon atoms. So this will be a secondary carbon. उसे हम यहाँ स्टार मार्क या हेस्ट्रिक्स मार्क से शो करते हैं। तो ये कार्बन सेकेंडरी हुआ, क्यों हुआ सेकेंडरी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम। आप कितनी भी बड़ी चेन लो, अब मुझे जैसे ये 6 कार्बन की चेन ले लिए, ये वैलेंसी बाकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, ये कार्बन बैकबोन बनाते हैं, है ना। हमने बात की थी कार्बन बैकबोन क्या होती है। तो सेकेंडरी कार्बन यहाँ पर देखिए, अब ये फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 5 and 6, करेक्ट। तो 6 कार्बन, इसमें से सेकेंडरी कार्बन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा क्या, नहीं, फर्स्ट वाला तो प्राइमरी हो गया, लास्ट वाला ये भी प्राइमरी होगा, इन बिटवीन जो भी रहेंगे वो सब सेकेंडरी हो जाएंगे। जैसे कार्बन नंबर 2, यस, कार्बन नंबर 2 विल बी secondary carbon because it is directly bonded to 2 other carbon. Then if we exclusively we take carbon number 3, है ना। अब कार्बन नंबर 3 को कंसिडर करते हैं, तो ये कैसे बॉन्डेड है, 2 और 4 से, तो ये भी सेकेंडरी हो गया। अब कार्बन नंबर 4 को एक्सक्लूसिव कंसिडर करो, तो ये किससे बॉन्डेड है, 3 से बॉन्डेड है और 5th से बॉन्डेड है। आप 5th कार्बन को लो, तो 5th कार्बन 4th से बॉन्डेड रहेगा और 6 से रहेगा। तो ऑल दीज विल बी द सेकेंडरी कार्बन because they are directly bonded to 2 other carbon atom. We call it as secondary carbon or 2 degree carbon atom. Now next is tertiary. Tertiary carbon atom. अब ये तो बहुत इजी हो जाएगा, अगर आपने प्राइमरी सेकेंडरी समझ लिया है। तो टर्शियरी को डिनोट करते हैं 3 डिग्री से, एंड इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, 3 other carbon atoms. It is directly bonded to 3 other carbon atoms. Correct है? So it is directly bonded to 3 other carbon atom. देखिए तो ये स्ट्रक्चर सैचुरेटेड कार्बन है ना। This is a saturated carbon molecule, hydrocarbon molecule, saturated hydrocarbon. And now focus on this particular carbon. So when we focus on this carbon, what we see, this particular carbon,
This is a carbon which is directly bonded to 3 other carbon. देखिए, directly bonded to 3 other carbon. We call it as tertiary carbon atom. Okay, so this is a tertiary carbon since it is directly bonded to 3 other carbon atom. Okay. Okay, now next fourth type है quaternary carbon atom. अब quaternary carbon atom क्या होना चाहिए? Quater means 4. Quarter means it is of 4. So quaternary carbon atom is that carbon atom, quaternary carbon atom, denoted by 4 degree. So quaternary carbon atom is that carbon atom which is directly bonded to 4 other carbon atoms. 4 other carbon atom. सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है ना? तो ये सैचुरेटेड हो गया, और सैचुरेटेड में दिस पर्टिकुलर कार्बन is what we call as quaternary carbon atom. It is also called as neocarbon. Neocarbon, a carbon which is bonded to 4 other carbon atom. So quaternary carbon atom. तो हमने क्या पढ़ा अभी? Types of carbon atom. Types of carbon atoms. कौन कौन से टाइप है बेटा? फर्स्ट क्या है अपने पास में? प्राइमरी. कैसे डिनोट करते हैं? 1 डिग्री से. ये डायरेक्टली कितने से बॉन्डेड है? बॉन्डेड विथ ओनली 1 कार्बन एटम. नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी. कैसे डिनोट करते हैं? 2 डिग्री. इट इज बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम. एंड थर्ड क्या देखा हमने? टर्शियरी. टर्शियरी का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? TERT. सेकेंडरी का SEC. सेकेंडरी हो गया टर्शियरी 3 डिग्री से. इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. करेक्ट है. और अभी फोर्थ वाला देखा हमने, क्वाटरनरी. क्वाटरनरी, और इसे क्या कहते हैं? नियो कार्बन एटम. क्वाटरनरी और नियो कार्बन एटम denoted by 4 degree. And what is neocarbon? A carbon which is directly bonded to 4 other carbon is what we call as quaternary carbon atom. So 4 types of carbon atom in a saturated hydrocarbon molecule. So in a saturated hydrocarbon molecule we will find 4 types of carbon atom: primary, secondary, tertiary and quaternary. This is the knowledge we will going to use in our nomenclature. So this preparation, this knowledge we are having. एक और हमने कुछ डिस्कस किया था that I would like to revise again, and that is the alkyl group or radical. Alkyl group or radical, है ना? याद आ रहा होगा आपको. कैसे मिलता है? अल्केन से. मैंने बताया था आपको RH, दिस इज व्हाट? अल्केन मॉलिक्यूल. और इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना है, माइनस हाइड्रोजन, तो क्या बचेगा? R. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अल्काइल ग्रुप और रेडिकल. और एग्जाम्पल भी देखा था हमने अल्केन का. मीथेन, मीथेन से H निकाल दिए तो CH3. मीथेन में से इसका ग्रुप का नाम कैसे आएगा? ANE को रिप्लेस कैसे करेंगे हम? YL से, तो बन जाएगा ये मिथाइल, है ना? AN की जगह क्या आ गया? YL. तो मिल गया हमें ये मिथाइल ग्रुप. और एग्जाम्पल कौन कौन से पता है हमको? अल्काइल ग्रुप के एग्जाम्पल कौन कौन से पता है? ये छोटी सी एक लिस्ट बना लेते हैं. ये मिथाइल हो गया, देन C2H5 आ गया, तो आई एम सॉरी इथाइल हो जाएगा वो इथेन से. C3H7 आएगा तो प्रोपाइल होगा वो. C4H9 होगा तो ब्यूटाइल होगा, है ना? अब ये वाले जो हाइड्रोकार्बन है, और रादर ये प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और इवन वी टेक C5H
11 पेंटाइल, है ना। ये वाले जितने ग्रुप है इसको भी थोड़ा सा फर्दर क्लासिफाई कर लिया गया है। जैसे अभी हमने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो मिथाइल में प्राइमरी आ सकता है क्या? नहीं, मिथाइल का कार्बन तो एक ही है और एक कार्बन है तो वो प्राइमरी ही रहेगा, है ना। मिथाइल यानी ये मीथेन में एक कार्बन है तो वो सेकेंडरी टर्शियरी रहेगा नहीं, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी। तो हमने क्या बोला था? प्राइमरी कार्बन एटम इज दैट कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन एटम, और अब हम क्या ऐड करेंगे उसी डेफिनेशन में, और टू नो अदर कार्बन एटम, है ना। नो अदर कार्बन एटम, तो ये क्या है? CH4। नो अदर कार्बन एटम यानी ये इसमें एक ही कार्बन है, कोई दूसरा कार्बन नहीं है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। तो चल रही थी बात कि मिथाइल प्राइमरी होगा, इथाइल में भी प्राइमरी आएगा क्योंकि दो ही कार्बन है, लेकिन प्रोपाइल में सेकेंडरी और दूसरे चांसेस बनते हैं, ब्यूटाइल में सेकेंडरी टर्शियरी बनेगा, पेंटाइल में तो सेकेंडरी टर्शियरी और क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर नियो कार्बन भी मिलने के चांस है। तो मैं यहाँ पर ये प्रोपाइल से शुरू करता हूं। प्रोपाइल, प्रोपाइल C3H7, इसके आइसोमर्स हम लोग बना लेते हैं, वी कॉल इट एज आइसोमर्स। आइसोमर्स की डेफिनेशन तो पता होगी अपने को, है ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो प्रोपाइल है डैश, एक वैलेंसी फ्री है C3H7। आप ये C3H7 को ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2। देखिए तो C3H7 हुआ क्या? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 and 2 5, 5 and 2 7। तो क्या बन गया? ये प्रोपाइल हो गया। वी कॉल इट एज N प्रोपाइल। नॉर्मल चेन है ना, कोई ब्रांच नहीं है, कोई नहीं है, ये नॉर्मल चेन है। नेक्स्ट वाला बनता है, ये देखिए स्ट्रक्चर CH और ये CH3, यानी यहाँ एक वैलेंसी फ्री है कार्बन की, है ना। कार्बन की टेट्रावैलेंसी चेक करो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये हाइड्रोजन के साथ थर्ड, और एक फोर्थ वैलेंसी फ्री है कार्बन की। तो इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। इसे सेकेंडरी मत कहना बेटा, ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन है, तो ये स्ट्रक्चर पे अपन हैशटैग लगा के रखते हैं, है ना। इसको सेकेंडरी मत बोलना, है ना। सेकेंडरी आएगा हमारा ब्यूटाइल से, ओके। तो ये CH3 CH CH3, we call it as isopropyl. Next we take butyl, BUTYL, butyl। ब्यूटाइल में क्या फॉर्मूला है? C4H9। C4H9 के बेटा आइसोमर बना लो अभी आप। तो कितने आइसोमर्स हो जाएंगे? एक तो पहला ये N वाला तो सभी के लिए बना सकते, नॉर्मल चेन, तो CH3 CH2 CH2 CH2। अगर CH3 कर देंगे तो सैचुरेटेड हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? ब्यूटाइल चाहिए, तो एक कार्बन उसमें लेस चाहिए। तो अब देखो 4 कार्बन है और 9 हाइड्रोजन है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9। तो ये क्या बना हमारे पास में? ब्यूटाइल। इसका नोमेनक्लेचर हम क्या कर सकेंगे? N ब्यूटाइल, नॉर्मल चेन है। दूसरा आइसोमर बनाते हैं अभी, ये देखिए अभी आप CH3 CH CH3 CH3। फिर से पहले काउंट कर लो कि 4 कार्बन तो दिख रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर है या कुछ ज्यादा हो गए हैं। देखिए हाइड्रोजन को चेक करते हैं हम, है ना। CH3 3 3 6 6 and 3 9, और यहाँ पर ये वैलेंसी एक फ्री हो गई, करेक्ट है। तो ये वैलेंसी फ्री है इसके पास में, तो अब ये 9 हो गए कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो गए। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल,
आइसो की एक और डेफिनेशन है। आइसो कब बनता है? आइसो, दिस इज आइसो अल्काइल ग्रुप, या आइसो अल्काइल ग्रुप कब बनेगा? व्हेन second carbon atom of normal chain possess one branch of methyl group. CH3 group is methyl group. Then that isomer we call it as आइसो, है ना। जैसे कि यहां पर मैं एग्जाम्पल बनाता हूं उसका। देखिए कैसे एग्जाम्पल बन जाएगा। आइसो अल्काइल ग्रुप कब बनेगा? ये एक नॉर्मल चेन अल्केन हो गया, है ना। वैलेंसी सेटिस्फाइड, CH3 CH2 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 CH3। अब इसके सेकेंड कार्बन पे दो टर्मिनल है, ये एक है लेफ्ट हैंड टर्मिनल और एक ये है राइट हैंड टर्मिनल। इसके सेकेंड कार्बन पे CH3 की ब्रांच लगा दो। तो ब्रांच लगाने के लिए CH3 लगाना, यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और उसके जगह ये CH3 ग्रुप आ गया, तो ये बन गया आइसो। ऐसा यहां भी पॉसिबल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से अगर आएंगे तो ये सेकेंड होगा, राइट से आएंगे तो ये सेकेंड। कोई भी एक टर्मिनल पकड़ेंगे आप, तो टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बना आइसोहेक्सेन। ये भी समझाएंगे हम आपको, है ना। तो ये बना आइसोहेक्सेन। तो आइसो कब लगता है? जब नॉर्मल चेन के व्हेन सेकेंड कार्बन एटम of normal chain possess one branch of methyl group। ये नॉर्मल चेन का सेकेंड कार्बन पे CH3, तो क्या आ गया? ये आइसो, करेक्ट है। तो ये आइसो बन गया। तो अब हमने यहाँ पर आइसोब्यूटाइल बनाया, है ना। आइसोब्यूटाइल बनाया हमने। कैसे बना ये आइसोब्यूटाइल? 1 2 3, है ना। और ये नॉर्मल चेन के सेकेंड कार्बन पे ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, उसके थर्ड कार्बन पे CH3 ग्रुप, आई एम सॉरी, सेकेंड कार्बन पे CH3 ग्रुप। तो ये क्या बना? आइसोब्यूटाइल बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी टेक इज पेंटाइल, PNTYL pentyl group, C5H11, C5H11 वन वैलेंसी फ्री। तो इसमें एक आइसोमर कौन सा बनेगा? ये वाला, है ना, जिसमें CH3 CH2 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 और फिर से CH2 एक टर्मिनल। CH3 यहां लगा देंगे तो पेंटेन हो जाएगा। एक वैलेंसी फ्री, 5 कार्बन और 11 हाइड्रोजन। आते हैं क्या? 5 and 2 7, 7 and 2 9, 9 and 2 11। तो ये हो गया पेंटाइल। वी नेम इट एज एन पेंटाइल। अब इसी को आप आइसोपेंटाइल बनाएंगे, बन जाएगा। आइसोपेंटाइल में क्या करना होगा आपको कि 4 कार्बन, सेकेंड कार्बन पे CH3 ग्रुप, तो आइसोपेंटाइल हो गया। इसी को आप सेकेंडरी पेंटाइल बना सकेंगे। सेकेंडरी पेंटाइल क्या होगा? अ कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम। अ कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम, CH3 CH2 CH2 CH3 CH। तो ये वैलेंसी इसके पास फ्री है। देखिए तो बराबर है CH3 CH2 1 2 3 एंड 4 वैलेंसी, 1 2 3 एंड 4th वैलेंसी। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप, है ना। अब इसी को नियो भी बना सकते हैं आप। 4th वाला क्वाटरनरी जिसकी बात की थी हमने, है ना। क्वाटरनरी क्या आ रहा था?
जिसमें कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन। लेकिन ये फेंटाइल के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। देखो तो C5H11 है, आएंगे क्या अपने पास में C5H11, 3 3 6 3 9 9 1 10 2 12 हो गए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि एक वैलेंसी को अपने को फ्री रखना पड़ेगा। ओके, तब वो बनेगा नियोपेंटाइल। तो बेटा इस तरह से हमने क्या देखा अभी, हाउ टू गेट एन अल्काइल ग्रुप, और वो अल्काइल ग्रुप के ब्रांच वाले भी कंपाउंड को, आइसोमर्स को हमने कंसीडर कर लिया कि जो अल्काइल ग्रुप है उसके ब्रांचेस क्या क्या रहेंगे। करेक्ट है, तो उसके ब्रांचेस वाले भी देखे हमने। जैसे एन प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल थोड़ा अलग से याद रखना है कैसे बनता है। देन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल भी पॉसिबल है। ओके, वैसे ही पेंटाइल के लिए पॉसिबल है। ये सब टाइम टू टाइम हम यूज करने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, और उसके बाद हमने क्या रिवाइज कर लिया, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैसे मिलता है, बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन। और अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब प्रोपाइल से ब्रांचिंग चालू हो जाती थर्ड कार्बन से, तो फिर वो आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, ऐसे उनके आइसोमर्स बनते। अब हम फोकस करते हैं, हमारा मेन टारगेट क्या है, IUPAC nomenclature. We will try to now use this information, IUPAC nomenclature. And I hope सभी को पता होगा IUPAC का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की एक इंटरनेशनल यूनियन बनी। उसने क्या किया कि ये जो इतने सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर करना, और नोमेनक्लेचर भी ऐसा हो कि जो रिपीट ना हो, नोमेनक्लेचर ऐसा हो जो वापस से कहीं दूसरे कंपाउंड में यूज ना हो सके, और साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए ये एसोसिएशन बनी। और उसने फिर बहुत सारे कुछ बेसिक थंब रूल्स दिए, जहां पर हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक तरीके से नेम दे सकते हैं। उसी लिए ये IUPAC नोमेनक्लेचर आ गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स है ना, बेसिक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। हम उसी की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स में हम पहले क्या पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which are normal chain and branch chain। ब्रांच चेन मैं समझा देता हूँ एक बार, वैसे पता होगा आपको। नॉर्मल चेन यानी जैसे मैं लेता हूँ ये पेंटेन, तो पेंटेन C5H12, इसकी नॉर्मल चेन कैसी बन गई, ये 5 कार्बन की नॉर्मल चेन आ गई, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, ये हाइड्रोजन एटम, तो ये नॉर्मल चेन। इसी की 5 कार्बन की ब्रांचिंग करनी है, तो ये ब्रांच हो गई एक। और ब्रांचिंग कैसे पॉसिबल है, ये 3 आ गए यहाँ पर, और ब्रांच ये कार्बन पे आ गई। अब ये ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे ही है, फिर भी समझाते हैं इसको, दोनों एक जैसे क्यों है ये दोनों सेकेंड और थर्ड एक जैसे, क्योंकि 2 टर्मिनल होते हैं किसी भी चेन के, है ना, इसके 2 टर्मिनल है। तो इसको जब नंबर करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। आप नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हो, लेकिन नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो ब्रांच है उसको लोएस्ट पॉसिबल आना चाहिए। तो आपने अभी नंबरिंग कहाँ से किया, राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किया, तो ब्रांच कौन से कार्बन पे आ गई,
थर्ड कार्बन पे। अब आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करो, यहाँ नीचे की तरफ लिखता हूं मैं 1 2 3 एंड 4। अब देखो ब्रांच कौन से कार्बन पे आ रही है, लेफ्ट टू राइट गए तो ब्रांच कौन से कार्बन पे आ गई अपने लिए, कौन से कार्बन पे आ गई, सेकेंड कार्बन पे। तो ये नंबरिंग करेक्ट है और ये नंबरिंग रॉन्ग है। अब यहाँ भी देखेंगे आप तो फिर से वो लेफ्ट और राइट आएगा। अब नंबरिंग करनी है आपको, सिखा दिया हमने। नंबरिंग कौन से टर्मिनल से करेंगे, द टर्मिनल विच प्रोवाइड लोअर लोकेंट और लोअर पोजीशन टू द ब्रांच। ये ब्रांच है उसकी CH3 की। तो लेफ्ट से करें या राइट से करें नंबरिंग, राइट से करेंगे। राइट से नंबरिंग किया 1 2 3 एंड 4, फिफ्थ, टोटल 5 कार्बन। फिर से सेकेंड कार्बन पे है तो ये लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आप गए तो कौन से कार्बन पे आ गया, सेकेंड कार्बन पे। यहाँ भी सेकेंड कार्बन है, ये भी सेकेंड कार्बन है, तो दोनों स्ट्रक्चर एक ही हो गए, है ना, बोथ आर द सेम स्ट्रक्चर। और क्या पॉसिबल है ब्रांच बनाने में, 5 कार्बन की ब्रांच देखो तो ये आ गई यहाँ पर, और इसके हाइड्रोजन भी लगा देता हूँ मैं, काउंटिंग कर लेंगे हम। तो है C5H12, है ना, 3 3 6 एंड 6 एंड 6 12 आ गए। तो ये है आपका ब्रांचिंग। ब्रांचिंग समझा, तो ये ब्रांच कौन से, सेकेंड कार्बन पे है, और यहाँ पर भी ब्रांच जो है वो सेकेंड कार्बन पे है। तो ये हम बात कर रहे थे कि IUPAC नोमेनक्लेचर हम पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ नॉर्मल चेन एंड ब्रांच चेन। इसके लिए क्या क्या रूल IUPAC सिस्टम ने डिजाइन किए हैं, दैट वी विल सी नाउ, है ना। टुडे वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स एंड फ्यू रूल्स, क्योंकि काफी सारे रूल्स है इसमें। इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर इन अ सिंगल लेक्चर, वी नीड टू have 2 3 or 4 lecture in order to cover all these rules. So for saturated hydrocarbon with normal and branching, जैसे ये एक एग्जांपल आपको जो पता है, CH3 CH2 CH3 नॉर्मल सैचुरेटेड है, इसका नोमेनक्लेचर आपने क्या किया, प्रोपेन, ये तो आता है हम सबको। अब हमें क्या करना है, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है, तो रूल क्या है, रूल नंबर 1, रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, सिलेक्ट the longest continuous carbon chain that is considered as parent alkane chain। parent alkane chain सैचुरेटेड है ना, तो हम उसे पेरेंट अल्केन चेन कंसीडर करेंगे। सही है। एक और एग्जांपल लिख के रख, इसी एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 में। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन दैट इज कंसीडर्ड एज पेरेंट अल्केन चेन। ये 2 वर्ड पे हम फोकस करते हैं, इसको समझते हैं। एक है लॉन्गेस्ट वर्ड है और दूसरा है कंटिन्यूअस। लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन, मैं ये दोनों वर्ड को एक्सप्लेन करता हूं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, करेक्ट, और दूसरा वर्ड है कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ये 2 चीजों को समझ लेते हैं अच्छे से। व्हाट डज इट मीन? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मीन्स a carbon chain having maximum number of carbon atom. Carbon chain having maximum number of carbon atoms.
correct? Maximum number of carbon atoms. That will be considered as longest carbon chain. एक वर्ड आ गया हमारा longest का मतलब कि a carbon chain having maximum number of carbon atoms. अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये longest chain होगी. एक ऐसी भी पॉसिबल है 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट है. तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपको लॉन्गेस्ट तो मिल गई जिसमें मैक्सिमम 4 कार्बन एटम है. अब सेकेंड वर्ड है हमारा कंटिन्यूअस कार्बन चेन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. इसको यहां समझेंगे हम लोग. कंटिन्यूअस कार्बन चेन मीन्स अ कार्बन चेन हैविंग only 2 free ends, only 2 free ends or terminals, only 2 free ends or terminals. We call it as a continuous carbon chain having only 2 free ends or terminal. तो ऐसी कौन सी कार्बन चेन जिसमें 2 फ्री टर्मिनल और 2 फ्री एंड होंगे? ये देखो तो ये कार्बन चेन इसमें है 2 फ्री एंड्स और 2 फ्री टर्मिनल. क्या ऐसी भी कार्बन चेन हो सकती है जो हम बोल सकेंगे कि इसमें फ्री एंड्स है? हाउ मेनी फ्री एंड्स वी सी? ओनली 2. देखिए मैं यहाँ पर एक ऐसे डॉट से उसको समझा देता हूँ. हाउ मेनी? 2 फ्री एंड्स. ये इस तरह से अगर कार्बन चेन को हमने अरेंज किया तो ये भी क्या हो गया? कंटिन्यूअस है ना. कोई ब्रांच है क्या इसके बीच में? कोई ब्रेक है? कोई नॉट है? नहीं. इसमें भी ये 2 फ्री एंड्स है, यहाँ भी 2 फ्री एंड्स है, इसमें भी 2 फ्री एंड्स है. करेक्ट है. अगर आप कार्बन एटम को ऐसे अरेंज कर दिए तो एक जिगजैग फॉर्म में कार्बन को अरेंज किया आपने तो वो भी तो देखिए ये भी फ्री एंड्स है, 2 फ्री एंड्स. ये फोल्डिंग है लेकिन ब्रांच नहीं है ना. ये कंटिन्यूअस है. दीज कार्बन एटम्स आर कंटिन्यूअसली बॉन्डेड टू ईच अदर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस चेन? अ कार्बन चेन having only 2 free ends or terminal is known as continuous carbon chain. तो अभी हम रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं. रूल नंबर 1 क्या बोलता है? Select the longest continuous carbon chain that is considered as a parent alkane chain. तो ये सेकेंड एग्जाम्पल में आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कितने कार्बन की मिल रही है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4. तो पेरेंट अल्केन चेन क्या बन गई आपकी? ब्यूटेन. 4 कार्बन विल बी कंसिडर्ड एज पेरेंट अल्केन चेन. तो यहाँ आ गया आपका कंटिन्यूअस कार्बन चेन. तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन दैट विल एक्ट एज अ पेरेंट अल्केन चेन. तो ये ध्यान में रखेंगे आप कि कंटिन्यूअस कार्बन चेन किसी भी फॉर्म में हो सकती है. वो एक वर्टिकल भी हो सकती है. ये भी तो लॉन्गेस्ट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया. इसमें भी 2 टर्मिनल ही आएंगे. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एल शेप, सी या यू शेप, जेड शेप, जिसमें कि 2 फ्री एंड और टर्मिनल रहेंगे, उसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस चेन. तो बेटा ये हो गया रूल नंबर 1. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. ओके. जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूं यहाँ पर CH3, CH2, CH, CH3, CH3, CH2, CH3. इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. अब कंटिन्यूअस आपको एल शेप भी पता है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4. तो आप कोई भी ब्रांच को इसको अगर कंसीडर करें तो 4 मिलता है,
यहाँ से कंसीडर करिए तो 4, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें तो टोटल कितने आ रहे हैं 5 कार्बन। तो ये आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मिल गई कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट का मतलब मैक्सिमम नंबर 5 कार्बन, कंटिन्यूअस का मतलब हैविंग ओनली 2 फ्री एंड, तो इसके पास 2 फ्री एंड है। ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। करेक्ट है। अब रूल नंबर 2 को समझो। ये रूल नंबर 2 आ गया तो अपने को काफी कुछ जम जाए। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, एक बार रूल नंबर 1 को बोले फिर रूल नंबर 2 आता है उसके बाद। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन दैट इज कंसिडर्ड एज पेरेंट अल्केन चेन। तो ये पेरेंट अल्केन चेन मिल गई आपको यहाँ पर। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, नंबर द कार्बन एटम्स, नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन। आपने पेरेंट चेन को बॉक्स में ले लिया है ना, और ये इसकी ब्रांच है जिसको आपने एनसर्कल किया है। नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन in such a way that the branch chain get the lowest possible number, correct है। branch chain should get the lowest possible number। तो number the carbon atoms of parent alkane chain in such a way that the branch chain gets the lowest possible number, in such a way that carbon containing, ऐसा लिख लेते हैं, carbon containing branch chain, carbon containing branch chain get the lowest possible number। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आपने ये पेरेंट चेन सिलेक्ट किया। अब आपके पास 2 टर्मिनल है, एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड टर्मिनल है। नाउ नंबर दिस कार्बन एटम इन सच अ मैनर दैट द कार्बन कंटेनिंग ब्रांच, ब्रांच किस पे आ गई है, ये कार्बन पे, ठीक है। दिस कार्बन शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो कौन सा टर्मिनल बेस्ट होगा सिलेक्ट करने के लिए, लेफ्ट। 1 2 3 एंड 4। तो 4th कार्बन इज हैविंग अ ब्रांच ऑफ मिथाइल ग्रुप, है ना। तो यहां लिख सकते हैं C4 इज हैविंग अ ब्रांच ऑफ मिथाइल ग्रुप। समझाते हैं अभी हम इसको कैसे यूज करना है। हम अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, आइडेंटिफाई किया हमने कि ये नॉर्मल चेन है 4 कार्बन की ब्यूटेन, और उस ब्यूटेन के सेकेंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप की ब्रांच है। करेक्ट है। तो ये बना आपका ब्रांचिंग। अब यहां पर आ जाओ, एग्जांपल नंबर 3 में देख लो, नंबरिंग करना पड़ेगा। टोटल 5 कार्बन एटम है, फिर से 2 टर्मिनल है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। आप लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। C3 3rd कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच। नंबरिंग हो रही है लेफ्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ्ट करके देख लो, राइट टू लेफ्ट यहां नीचे लिखता हूं मैं 1 2 3 4 एंड 5। अब फिर से राइट टू लेफ्ट भी जाते हैं तो 3rd कार्बन पे मिथाइल है, और पेरेंट कार्बन कितने हैं 5, तो 5 यानी पेंटेन, 5 यानी पेंटेन हो गया। और उसके 3rd कार्बन आप लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, कौन सी ब्रांच आ रही है, मिथाइल, और उसे हम लिखते हैं ये पेरेंट के प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स यानी जो पहले फिक्स होता, सफिक्स यानी जो बाद में फिक्स होता। जैसे प्रीफिक्स हम लोग लगाते हैं ना नाम के आगे,
डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, और फिर श्री श्री श्री, है ना, 1008 स्वामी जी महाराज। तो ये क्या होता है, श्री जो लगाते हैं, मिस्टर जो लगाते हैं, डॉक्टर जो लगाते हैं नाम के पहले, वो क्या होते हैं, प्रीफिक्स। तो इसको प्रीफिक्स क्या मिलेगा कि ये पेंटेन के थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस कि हमने नंबरिंग किया तो बड़ी अजीब सी नंबरिंग आ गई थी, है ना, कि ये सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है ना, C4 लिख दिया था हमने, वो गड़बड़ हो रही थी। तो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो ब्यूटेन, प्रीफिक्स लगाओ, प्रीफिक्स लगाओ, कौन सा नंबर कार्बन का सेकेंड, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो नोमेनक्लेचर क्या बना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो रूल नंबर 1 आपने पढ़ा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। और कार्बन चेन लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम कार्बन एटम, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ 2 ही फ्री टर्मिनल हो। तो रूल नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन that will be considered as parent alkane chain. Rule number 2, number the carbon atoms of parent chain in such a way that the carbon containing branch chain gets the lowest possible number. तो चलिए और 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं. We'll take example number 4 here. CH3, CH, CH3, CH2, 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 CH3. Select the longest continuous carbon chain. अब हम इसे भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, longest continuous carbon chain. अभी हमको क्या एक नोटेशन ध्यान में रखना है कि जो पेरेंट चेन है उसको बॉक्स में लेंगे हम, और जो ब्रांच है उसको हम एनसर्कल करेंगे, ब्रांच चेन. तो ये वाला नोटेशन जब भी आप लिखेंगे तो देखेंगे ऐसा लिखना बहुत इजी होता. थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इजी कन्वर्शन होगा. तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक ही बात है. इधर से गिनो या इधर से, सीधी वाली चेन भी 6 है और ये एल शेप में लिया तो भी 6 है ना. अब इसमें ब्रांचिंग देखना है तो ये ब्रांच यहाँ पर आ गई, अब ब्रांच यहाँ पर आ गई, या फिर आपने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट किया. चलो स्ट्रेट चेन सिलेक्ट किया और CH3 यहाँ पर है तो ये इसकी ब्रांच होगी, ये पेरेंट चेन हो गया. अब नंबरिंग करना, रूल नंबर 2. रूल नंबर 1 हो गया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5 6. 6 carbon is parent alkane is hexane. Number left to right, number them. Which terminal we should select? Left terminal. 1 2 3 4 5 and 6. Correct? So which carbon is having branch? The second carbon is having a branch of which group? Methyl group. तो हम क्या लिखेंगे? 2-methyl hexane. सही है. एक और एग्जाम्पल, CH3, CH2, CH, C2H5, CH2, CH3. ये एग्जाम्पल नंबर 5 जरा ध्यान से देखेंगे. अभी हम क्या करते हैं? रूल नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम, कंटिन्यूअस मींस ओनली 2 फ्री टर्मिनल. तो फ्री टर्मिनल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन. यहां से अगर काउंट करें तो ये भी तो एक टर्मिनल होगा ना, ये भी तो 2 फ्री टर्मिनल वाला ग्रुप बनता है. तो 1 2 3 4 and 5, ये 2 कार्बन एक साथ है ना.
तो 2 कार्बन एटम 5 हो गए, फिर से 1 2 3 4 एंड 5, तो दिस इज पॉसिबल और दिस इज पॉसिबल। तो हम ये सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन बॉक्स में लिया हमने। हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 इज पेंटेन। रूल नंबर 1 हो गया, ब्रांच को इनसर्कल कर दिया, तो ये 5 कार्बन की पेंटेन और ये ब्रांच आ गई। अब नंबरिंग करो, नंबरिंग कौन से टर्मिनल से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये थर्ड कार्बन बनता है, कहीं से भी आपने नंबरिंग किया तो, है ना। तो थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये, अल्काइल ग्रुप, इथाइल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 इथाइल पेंटेन इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। एक और एग्जांपल बेटा, और फिर ये बाकी के रूल्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये हो गया 3 इथाइल पेंटेन, समझा आप सभी को। 5 कार्बन पेरेंट चेन बॉक्स में लिया, ब्रांच C2H5 है, इथाइल आ गया, प्रीफिक्स करके लगाया 3 इथाइल पेंटेन, करेक्ट है। अब यहाँ आ जाओ, एक एग्जांपल देखते हैं, ये CH3 CH C2H5 CH2 CH3, सही है। अब इसमें रूल नंबर 1 अप्लाई करो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम नंबर, कंटिन्यूअस मीन्स 2 टर्मिनल, तो ये 2 टर्मिनल हो सकते हैं, या फिर ये भी 2 टर्मिनल हो सकते हैं, सही है, 2 टर्मिनल्स। तो 1 2 3 4 कार्बन है ये टर्मिनल पे, ये टर्मिनल से गिनेंगे तो 1 2 3 4 and 5. Oh my God! So this is having 5. This straight chain is having 4. This L shape is having 5 carbon. ये टर्मिनल से गिनेंगे तो 1 2 3 and 4. तो यहाँ से भी 4 आते हैं। तो मैक्सिमम कौन से मिल रहे हैं हमको? ये यहाँ से राइट टर्मिनल से L शेप बनाना है। फिर से एक बार 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन आ गए। स्ट्रेट चेन ले रहे तो 4 आ रहा है, लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं तो वो भी 4 आ रहा है। तो हमारे लिए अब मेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज दिस। दिख रहा है, देखिए बॉक्स में बनाने से कितना आसान हो गया। और ये हो गई आपकी ब्रांच। तो टोटल कार्बन 5 इज पेंटेन। नाउ नंबर इट। अब नंबरिंग के लिए ये राइट हैंड टर्मिनल कंसीडर करो, ये लेफ्ट हैंड टर्मिनल कंसीडर करो और नंबरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि टर्मिनल तो ऐसे ही बनने वाला है ना, टर्मिनल तो ऐसे ही आने वाला है। तो नंबरिंग, कौन सा टर्मिनल सिलेक्ट कर, ब्रांच कौन सी है यहाँ पर, कौन से कार्बन पे, इस पर्टिकुलर कार्बन पे, दिस पर्टिकुलर कार्बन इज हैविंग ब्रांच, सो नंबर इट 1 2 3, दिस इज द कार्बन विच होल्ड्स द ब्रांच, 1 2 3 थर्ड आ गया, और 4 5 यहाँ पर आएगा, सही है, क्योंकि 2 कार्बन एक साथ है। अब अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, यहाँ नीचे से नंबरिंग करते हैं, तो ये क्या कार्बन बनेगा, 1 2 3 4 5। फिर से एक बार, वो ये क्या हो गया, 1 and 2 together, then 3, then 4 and 5. That means again this carbon going to be the third carbon. और थर्ड कार्बन पे कौन से ग्रुप की ब्रांच है, मिथाइल की, so we name it as 3-methyl pentane. Okay, so these are the two basic fundamental rules of naming saturated hydrocarbon with branch. Okay, saturated hydrocarbon with branch. Select the longest word का meaning याद रखना है, continuous word का meaning याद रखना है,
and after getting longest continuous carbon chain as a parent alkane chain, number the carbon atoms of parent chain so that the carbon containing branch chain gets the lowest possible number. अभी और भी rules है that I will discuss with you, and you keep on writing in a notebook. Okay, so you start writing these rules in a notebook with all these example. देखिए ये लेक्चर जो हो रहा है तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अभी पर्टिकुलर यहाँ पर आपको नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक में अपने को ये सारे पॉइंट्स लेक्चर वाइज लिखते जाना है. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. 50